Let's start weekly MCQ series part 2 for 4 to 10th October. गाइस पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा. 51st question is, who authored the book titled Discovering the Heritage of Assam? Union Minister Jitendra Singh released a coffee table book. Options are Girish Kubel, J.K. Rowling, Kumar Padampani Bora, Bomma Devara or B.B. Lal. Its answer is Kumar Padampani Bora. Next question, DRDO successfully flight tested the anti-submarine weapon system SMART from Wheeler Island, Odisha recently. What does S in SMART stands for? Options are submarine, surface, supersonic, satellite or none of the above. Its answer is supersonic and its full form is supersonic missile assisted release of torpedo. SMART की full form है supersonic missile assisted release of torpedo. Next question, who addressed the international webinar on textile traditions which was organized by Indian Council for Cultural Relations ICCR and the Uttar Pradesh Institute of Design UPID on theme weaving relations textile traditions. Options are Amit Shah, Narendra Modi, Rajnath Singh, Ramnath Kovind or Nitin Gadkari. Its answer is Narendra Modi. नरेंद्र मोदी एड्रेस द इंटरनेशनल वेबिनार ऑन टेक्सटाइल ट्रेडिशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था आईसीसीआर और यूपीआईडी के द्वारा और इसकी थीम थी वीविंग रिलेशंस टेक्सटाइल ट्रेडिशंस. Next question, who among the following is conferred with Indo-American Chamber of Commerce Lifetime Achievement Award? IACC का Lifetime Achievement Award इनमें से किसे दिया गया है? Options are अजीम प्रेमजी, राहुल बजाज, धीरू भाई अंबानी, नवीन जिंदल और रतन टाटा. Its answer is रतन टाटा. Next question, Madhabi Puri book the first whole-time women member of which organization has got 1 year extension? Options are Forward Market Commission of India, Reserve Bank of India, IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority or SEBI. Its answer is SEBI. Madhabi Puri book is the first whole-time women member of SEBI and she has got 1 year extension. Next question, which country has declared Phoenix settlement in the country as national heritage site? Phoenix settlement किस कंट्री में नेशनल हेरिटेज साइट का उसको टैग मिला है? इट्स आंसर इज साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन, the airport in which state or union territory become airport authority of India's first 100% solar powered airport? एआई का फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया? पुडुचेरी एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट और लद्दाख एयरपोर्ट. इट्स आंसर इज पुडुचेरी एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच लॉन्च्ड यूनियन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिस टावो? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा और केरला. इट्स आंसर इज गोवा. गोवा स्टेट लॉन्च्ड online e-learning platform Dishtavo. Next question, Congress leader Naseeb Pathan who passed away in October 2020 belongs to which state? कांग्रेस लीडर नसीब पठान का हाल ही में निधन हो गया. वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़. इट्स आंसर इज उत्तर प्रदेश. He belonged to Uttar Pradesh. Naseeb Pathan belonged to Uttar Pradesh. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफिनिश्ड इज द मेमोयर ऑफ होम? अनफिनिश्ड नाम का मेमोयर इनमें से किसका है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, सारा अली खान. इट्स आंसर इज प्रियंका चोपड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियाज लार्जेस्ट HPC AI सुपर कंप्यूटर विच विल बी कमीशन्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC. परम शिवाय AI, परम युवा AI, परम ईशान AI, परम सिद्धि AI और वर्गो AI. Its answer is Param Siddhi AI. Param Siddhi AI is India's largest HPC AI supercomputer which will be commissioned by CDAC. इंडिया का लार्जेस्ट HPC AI सुपरकम्प्यूटर का नाम है परम सिद्धि AI. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंगो सागर इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? जो कि ये हेल्ड हुई थी बे ऑफ बंगाल पे. इंडिया श्रीलंका के बीच में, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश नेपाल, इंडिया बांग्लादेश और नेपाल श्रीलंका.
Its answer is India Bangladesh. Next question, who has been appointed as the brand ambassador and advisor of sports tech startup Hudl? Hudl जो स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप है उसके ब्रांड एम्बेसडर और एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है? सो सॉरी फॉर मिस्टेक, इट्स आंसर इज़ ऑलरेडी गिवन, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को एडवाइज़र और एम्बेसडर स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप ह्यूडल का अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी कोलैबोरेटेड विद सैट श्योर एनालिटिक्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेशन? क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेशन के लिए सैट श्योर एनालिटिक्स के साथ कोलैबोरेट करने वाली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? रिलायंस, टाटा AIG, ICICI लोम्बार्ड, बजाज आलियांज और ओरिएंटल। इट्स आंसर इज रिलायंस। रिलायंस ने सैट श्योर एनालिटिक्स के साथ सैट श्योर एनालिटिक्स के साथ रिलायंस ने बैंक एश्योरेंस अग्रीमेंट एक तरह से साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI हैज़ रिलीज्ड एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑन कलर कोडिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस रिसेंटली। हाउ मेनी कलर्स विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस? IRDAI ने एक एक्सपोजर ड्राफ्ट रिलीज़ किया है ऑन कलर कोडिंग। कलर कोडिंग पर है ये एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए एक कलर कोडिंग IRDAI ने रिलीज़ की है। इसमें कितने कलर्स मेंशन किए गए हैं? 7 कलर्स, 5 कलर्स, 3 कलर्स, 2 कलर्स और 4 कलर्स। इट्स आंसर इज 3 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लान टू इन्वेस्ट हाउ मच इन अवाडा एनर्जी टू एक्सपैंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए अवाडा एनर्जी के साथ ADB ने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? $15 मिलियन, $25 मिलियन, $5 मिलियन, $50 मिलियन, $75 मिलियन। इट्स आंसर इज $15 मिलियन। ADB ने $15 मिलियन अवाडा एनर्जी में इन्वेस्ट करने का सोचा है टू एक्सपैंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। सो आंसर इज $15 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया proposed to build $6 billion वर्थ पेट्रोलियम रिफाइनरी इन विच कंट्री? $6 बिलियन वर्थ का पेट्रोलियम रिफाइनरी किस कंट्री में इंडिया ने प्रपोज किया है बिल्ड करने का? बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, चाइना और म्यांमार। इट्स आंसर इज म्यांमार। म्यांमार में इंडिया बिल्ड करने वाला है $6 बिलियन वर्थ का पेट्रोलियम रिफाइनरी इन म्यांमार। Next question, Union Minister Sadanand Gowda launched POS 3.1 software, SMS gateway and home delivery facility of fertilizers for farmers in which state? यूनियन मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने लॉन्च किया है POS 3.1 सॉफ्टवेयर और SMS गेटवे और होम डिलीवरी फैसिलिटी फॉर फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे 3 चीज़ें उन्होंने लॉन्च की हैं, POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे एंड होम डिलीवरी फैसिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा और केरला। इट्स आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के फार्मर्स के लिए होम डिलीवरी ऑफ फैसिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, SMS गेटवे एंड POS 3.1 सॉफ्टवेयर ये यूनियन मिनिस्टर सदानंद गौड़ा जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टेट और UT विच प्लान टू लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च करने का किस स्टेट ने सोचा है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इट्स आंसर इज गुजरात। गुजरात में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम रूरल एरियाज़ के लिए लॉन्च होने वाला है, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। सो दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन हाउ मैनी साइट्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की कितनी साइट्स में ये माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन लॉन्च किया गया है? 3 साइट्स, 4 साइट्स, 6 साइट्स, 9 साइट्स और 5 साइट्स। इट्स आंसर इज 6 साइट्स। 6 साइट्स में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन तीनों ने मिलकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने लॉन्च किया है डॉल्फिन बेस्ड इको टूरिज़्म प्रोग्राम। इसका नाम था, ये अपनी तरह का माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन एक इको टूरिज़्म प्रोग्राम है। एट 6 साइट्स में लॉन्च हुआ है अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड इंडिया सेलिब्रेट्स
October 5 every year as गंगा रिवर डॉल्फिन डे। अक्टूबर 5 को गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है एज दिस डे, क्योंकि इस दिन गंगा डॉल्फिन्स वर डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स इन 2010। 2010 में गंगा डॉल्फिन्स को 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन्स को यहाँ पे नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था और 5 अक्टूबर को गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर नजीब ताराकाई हु पास्ड अवे रिसेंटली played for which country? पाकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यूएई। इट्स आंसर इज अफगानिस्तान। क्रिकेटर नजीब ताराकाई ये बिलोंग करते थे अफगानिस्तान से एंड he belonged to cricketing profession. Next question, which IIT developed telemedicine home care technology for COVID-19 named iMedix? iMedix नाम की COVID-19 के लिए टेक्नोलॉजी, होम केयर टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन होम केयर टेक्नोलॉजी किस आईआईटी ने डेवलप की है और जिसका नाम है iMedix? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, गुवाहाटी, मद्रास और कानपुर। इट्स आंसर इज आईआईटी खड़गपुर का ये प्रोडक्ट है। आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है टेलीमेडिसिन होम केयर टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19 और जिसका नाम है iMedix। आईआईटी खड़गपुर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इसरो along with which country planned to launch constellation of maritime surveillance satellites for Indian Ocean region? इंडियन ओशन रीजन के लिए मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन लॉन्च करने के लिए इंडिया में इसरो ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है? रशिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके। इट्स आंसर इज फ्रांस। फ्रांस के साथ इंडिया का इसरो वो लॉन्च करने वाला है, प्लानिंग कर रहा है लॉन्च करने का कॉन्स्टेलेशन ऑफ मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट फॉर इंडियन ओशन रीजन। सो इट्स आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गैंसल एंड एंड्रिया घेस हु गॉट 2020 नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? किस फील्ड में रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गैंसल और एंड्रिया घेस को 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है? इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लिटरेचर। इट्स आंसर इज फिजिक्स। फिजिक्स के फील्ड में रोजर पेनरोज, रीनहार्ड गैंसल एंड एंड्रिया घेस को 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है। सो इट्स आंसर इज फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमर अल रज़ाज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? He resigned in October 2020. Options are Iraq, Syria, Israel, Saudi Arabia और जॉर्डन। इट्स आंसर इज जॉर्डन। ओमर अल रज़ाज़ जॉर्डन के प्रधानमंत्री थे, जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने रिसेंटली अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। सो इट्स आंसर इज जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपनी which has launched a Make Small Strong campaign for small businesses. स्मॉल बिजनेसेस के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया है गूगल इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक विच इन पार्टनरशिप विद वीज़ा लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर अवेलिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ LAS। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ अवेल करने के लिए अपनी तरह का पहला डेबिट कार्ड फैसिलिटी वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करके किस बैंक ने लॉन्च किया है? SBI, ICICI, HDFC, RBL और पंजाब नेशनल बैंक। इट्स आंसर इज ICICI बैंक। ICICI बैंक ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करके अपनी तरह का पहला डेबिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की है टू अवेल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ पार्टनर विद स्विगी टू टेक स्ट्रीट फूड बिजनेस ऑनलाइन अंडर PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि स्कीम के अंडर स्ट्रीट फूड बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए स्विगी के साथ किस मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है? होम अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पंचायती राज। इट्स आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Ministry of Housing and Urban Affairs partnered with Swiggy. Next question, who chaired the 5th special session of WHO Executive Board? WHO Executive Board की 5th special session किसने यहाँ पे वो उसके चेयरमैन कौन थे? जिम फोर्ब्स, हर्षवर्धन, एनाटोली अंजोर गूफ, इवान डेविड। इट्स आंसर इज हर्षवर्धन। मिस्टर हर्षवर्धन उन्होंने वो यहाँ के चेयरपर्सन रहे हैं 5th स्पेशल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये सेशन कौन सा था? 5th एडिशन था, स्पेशल सेशन था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड का।
So this was the 5th edition and Mr. Harshvardhan chaired the session. Next question, India's first 5 animal overpass or animal bridges will be constructed in which expressway? इंडिया का पहला 5 एनिमल ओवरपास और एनिमल ब्रिज जिसे कहा जाएगा वो कंस्ट्रक्ट हो रहा किस एक्सप्रेसवे पे? इट्स आंसर इज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ये एनिमल ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क ये किस स्टेट में डेवलप होने वाला है? उत्तराखंड, सिक्किम, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा. इट्स आंसर इज गुजरात. गुजरात में इंडिया का फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क विल बी सेट अप in Gujarat. Next question, Naugarh railway station which was renamed as Siddharthnagar railway station is located at which state? So its answer is Uttar Pradesh. Naugarh railway station को रिनेम किया गया था सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन और वो है उत्तर प्रदेश में. Next question, Housing and Urban Affairs Secretary Durga Shankar Mishra has launched API integration between PM Swanidhi portal and e-Mudra portal of which bank? Housing and Urban Affairs Secretary Durga Shankar Mishra has launched API integration between PM Swanidhi portal and e-Mudra portal of which bank? Its answer is State Bank of India. State Bank of India का पोर्टल है e-Mudra एंड PM स्वानिधि पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन हो गया है और ये लॉन्च किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Zircon is hypersonic cruise missile was successfully tested by which country? Russia, China, US, Germany or Japan? Its answer is Russia. Zircon is hypersonic cruise missile of Russia. Next question, Alpha Design Technology Limited ADTL has bagged 591 crore rupees worth contract to upgrade and digitize which missile? Its answer is Pechora missile. Pechora missile को डिजिटाइज करने के लिए अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 591 करोड़ रुपीस का. ये मिला है अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को. अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है 591 करोड़ रुपीस का टू अपग्रेड एंड डिजिटाइज विच मिसाइल सिस्टम? टू अपग्रेड एंड डिजिटाइज पेचोरा मिसाइल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, Abu Dhabi Investment Authority ADIA planned to invest 5,512 crore rupees to buy डैश परसेंटेज इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड. कितने परसेंटेज स्टेक ये परचेज करने वाला है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और ये इन्वेस्ट करेगा 5,512.5 करोड़ रुपीज़. इट्स आंसर इज़ 1.2%. नेक्स्ट क्वेश्चन, Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna won 2020 Nobel Prize in Chemistry for development of method for which among the following? इनमें से कौन सा मेथड डेवलप करने के लिए इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोडना को नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला है? इट्स आंसर इज़ जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग के लिए इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डोडना को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में. तो इट्स आंसर इज जीनोम एडिटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, जे वेंकट रामू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ विच पेमेंट्स बैंक? ऑप्शंस आर एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक. जे वेंकट रामू को इनमें से किस पेमेंट बैंक का MD and CEO यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? इट्स आंसर इज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD CEO बन गए हैं जे वेंकट रामू. नेक्स्ट क्वेश्चन, Sabah Al Khalid Al Sabah, the Prime Minister of which country resigned recently? Its answer is Kuwait. कुवैत के प्राइम मिनिस्टर सबा अल खालिद अल सबा ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विद DET GIZ इंडिया एंड साइमंस इंडिया? DET GIZ इंडिया एंड साइमंस इंडिया के साथ MOU किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है? टू इम्प्लीमेंट इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन. इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये इम्प्लीमेंट करने के लिए DET GIZ इंडिया एंड साइमंस इंडिया के साथ किस स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है? पंजाब, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना. इट्स आंसर इज तेलंगाना गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द PSU विच साइंड MOU विद प्रसार भारती.
टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। प्रसार भारती के साथ किस पीएसयू ने एमओयू साइन किया है? टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए प्रसार भारती के साथ किसने एमओयू साइन किया है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल फार्म्स कॉरपोरेशन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। इट्स आंसर इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विद विस्तारा to launch industry first co-branded forex card for international travelers। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए इंडस्ट्री का फर्स्ट co-branded forex कार्ड विस्तारा के साथ पार्टनरशिप करके किस बैंक ने लॉन्च किया है? इट्स आंसर इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक और विस्तारा के बीच में पार्टनरशिप हुई है टू लॉन्च इंडस्ट्री का पहला co-branded forex कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। एक्सिस बैंक इज द आंसर, एक्सिस बैंक एंड विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई प्रेरणा launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman is the business mentoring program of which bank? business mentoring program ये MSME प्रेरणा है, ये लॉन्च किया है फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ये बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम किस बैंक का है? SBI, PNB, केनरा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। इट्स आंसर इज इंडियन बैंक। ये बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम इंडियन बैंक का है और इसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा। एमएसएमई प्रेरणा फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है और ये इंडियन बैंक का प्रोग्राम है। ये बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिलीज द इंडियाज फर्स्ट पैन इंडिया यूज सर्वे टाइटल्ड एनएसएस रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2019। एनएसएस रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2019 नाम की सर्वे, ये रिपोर्ट किसने, इंडिया का पहला पैन इंडिया यूज सर्वे है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इट्स आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। मॉस्पी ने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है, एनएसएस रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2019। ये इंडिया का फर्स्ट पैन इंडिया यूज सर्वे था और ये लॉन्च किया गया है मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मीट चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वाज हेल्ड रिसेंटली। जीएसटी काउंसिल का कौन सा एडिशन ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था? 35th एडिशन, 39th, 45th, 42nd और 27th। इट्स आंसर इज 42nd एडिशन। जीएसटी काउंसिल का रिसेंटली 42nd एडिशन ये कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कॉटन डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन October 6, October 4, October 5, October 7 और October 2। इट्स आंसर इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड annually on October 7. October 7 is the right answer. Next question, it was first celebrated in 2019 और 2019 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। To recognize the importance of cotton as a global commodity grown in over 75 countries across 5 continents and to highlight its central role in job creation and maintaining economic stability in several least developed countries। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जॉब क्रिएशन में, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करने के लिए 5 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस 75 कंट्रीज से ज़्यादा में ये कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को और ये 2019 से सेलिब्रेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2020 मार्क्स इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी इसकी 2020 में सेलिब्रेट की गई है। नेम द आईसीजी ऑफशोर पेट्रोल वेसल which was recently at Kattupalli Port, Chennai to enhance coastal security। कोस्टल सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए कट्टुपल्ली पोर्ट चेन्नई पर लॉन्च किया गया है। कौन सा वेसल है? आईसीजी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली पोर्ट चेन्नई में। सार्थक, सचेत, वज्र, विग्रह और वेलियंट। इट्स आंसर इज विग्रह। विग्रह इज द नेम ऑफ आईसीजी ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो कि लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली पोर्ट चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी पार्टनर विद जीवीएमसी फॉर द एरियल सीडिंग इनिशिएटिव एट विच सिटी? दिल्ली, विशाखापट्टनम, चेन्नई, बेंगलुरु और कोची। इट्स आंसर इज विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड अ ग्लोबल सिम्पोजियम इंडिया PVH 2020। इंडिया PVH 2020 ग्लोबल सिम्पोजियम, ये दिस वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय which organization? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्ट इंडिया, ऑल थ्री और नन ऑफ द अबव। इट्स आंसर इज ऑल थ्री। नीति आयोग,
Ministry of New and Renewable Energy, and Invest India. Next question. Thanks for watching this session. If you really like this session, please hit the like button and share it with your friends. And if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel. Please find the link of part 1 of this series in the description box and definitely watch it. Thanks again for watching.